Hey guys, good evening all of you. So how are you all doing? Welcome to our channel EduStep. Please share the channel with your friends, and if you like this channel, subscribe to the channel. What all we are going to do in this are going to do the complete science and math syllabus of 9th and 10th. Once we are done with that, we are going to go on to we're going to prepare you for your IIT JEE right from class 9 for physics, biology, chemistry, and mathematics. Right? So that is foundation courses which we are going to begin over here. You can also download the app Shelley's Chemistry from Google Play Store. The link that is given in the description box. Over there also you will get recorded lectures of class 9 and 10, and you will also get well, we can say a lot of question practice, and you will also get a lot of notes and things which you have to do while you're preparing for your IIT JEE and right? So you have to start preparation right now. As of now, we are going very slow. I'm just taking very small topics at a time so that you start developing interest towards these subjects. Interest होना जो है वो बहुत जरूरी है. अगर interest होगा, only then you will be able to go forward. Okay, guys. So let's begin. Matter we are doing matter in our surroundings. We've done lot of topics we have already completed. अभी हम लोग आज क्या करेंगे? हमने states of matter करा था. States of matter में आपने solid करा, liquid करा, gas करा. तो generally अभी तक आपको ये पता था कि ये 3 states of matter जो है ये present. But there are 2 more states of matter. So we are going to do today other states of matter, right? क्या करने वाले हैं हम आज? Are going to do other states of matter. Let me just take my pen. Just give me a second. Okay, we are going to go on to the slideshow. I forgot. Where is our slideshow? Here it is from the beginning. All right. So this is better now. Let me take my pen. So we are going to do over here other states of matter. Let's see दो कौन-कौन से और states of matter है और कहाँ पे ये present रहते हैं, क्योंकि आपको इस तरह के questions multiple choice questions पे पूछे जा सकते हैं in your term 1 and term 2. Term 1 में I think the first chapter is in term 1. तो term 1 में आपको पूछे जा सकते हैं. Scenario पूरा change हो गया है. So let's go on to the next state of matter. हमारे पास जो next state of matter है वो है plasma. ओके, क्या होता है प्लाज्मा? प्लाज्मा के पास सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स. तो बेसिकली जब हम लोग प्लाज्मा करते हैं तो हम बोलते हैं प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स, और इट कंसिस्ट ऑफ एक और नाम दे सकते हैं सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स. सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स कब बनेंगे? तभी बन सकते हैं. हमने पढ़ा था कि जब टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है ना. काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज हो गई तो पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड स्टेट पे पहुंच जाएंगे. अगर वो एक्साइटेड स्टेट पे पहुंच गए हैं, बहुत उनकी रिगरस मूवमेंट होने लग जाएगी और वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू गैसेस. तो प्लाज्मा बेसिकली दे आर सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स. बहुत ज्यादा एनर्जी इनमें रहती है, सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स हैं. तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि these particles they are in the form of ionized gases. ओके, सो जितनी भी आयोनाइज्ड गैसेस होंगी एट हाई टेम्परेचर वो सब बनाएंगी क्या? वो बनाएंगी प्लाज्मा. तो किस किस चीज में प्लाज्मा प्रेजेंट है? देखो ये आपका एक क्वेश्चन बनता है. प्लाज्मा प्रेजेंट है फ्लोरेसेंट बल्ब्स में. जितने भी आप फ्लोरेसेंट बल्ब्स देखते हो उनमें प्लाज्मा प्रेजेंट है. फ्लोरेसेंट बल्ब में कौन सी गैस होती है? देयर कैन बी हीलियम गैस और एनी अदर गैस. कोई भी और गैस हो सकती है और एनी अदर गैस. जब टेम्परेचर रेज करते हैं या हम बल्ब्स को ग्लो करते हैं तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है. से जितना भी उसमें मटेरियल होगा या ये ऑलरेडी जो गैस इसमें प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी आयोनाइज. जब वो आयोनाइज होती है तो वो डिफरेंट कलर्स देती है, एंड दैट इज व्हाट प्लाज्मा इज. आई जस्ट शो यू द फिगर ऑफ प्लाज्मा आफ्टर दिस. फ्लोरेसेंट ट्यूब में हीलियम गैस होगी
और दूसरा जहां पे ये प्रेजेंट रह सकता है दैट इज द, देखे होंगे आपने, नियॉन साइन बल्ब्स। तो नियॉन साइन बल्ब्स जो है उसपे कौन सी गैस प्रेजेंट रहेगी, नेम ही बता रहा है, उसपे जो गैस प्रेजेंट रहने वाली है दैट इज गोइंग टू बी द नियॉन गैस। तो फ्लोरोसेंट बल्ब्स में कौन सी गैस प्रेजेंट है, हीलियम गैस हो सकती है, देयर कैन बी एनी अदर गैस। नियॉन साइन बल्ब्स में नियॉन गैस प्रेजेंट है। जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो जितने भी गैसेस हैं वो आयनाइज हो जाते हैं, और आयनाइज होने से क्या बना रहे हैं वो, दे आर फॉर्मिंग ग्लोइंग प्लाज्मा। ये जो कलर ग्लोइंग प्लाज्मा का होता है वो डिपेंड करता है कि कौन सी गैस उसमें प्रेजेंट है। ओके, और इसके अलावा कहाँ पे प्लाज्मा प्रेजेंट रह सकता है, प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रेजेंट रह सकता है सन में, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द स्टार्स, जिसकी वजह से सन और स्टार्स ग्लो करते हैं, राइट। और प्लाज्मा स्टार्स में क्यों है, stars में the temperature is very very high, gases ionize हो जाएंगी and they are going to form plasma, right? So once again let's revise, plasma super energetic particles होते हैं, ionized gases होती हैं, super excited particles होते हैं, कहाँ कहाँ present है, फ्लोरोसेंट बल्ब्स में प्रेजेंट है। फ्लोरोसेंट बल्ब में कौन सी गैस प्रेजेंट होती है, हीलियम गैस प्रेजेंट होती है या कोई भी और गैस प्रेजेंट हो सकती है। नियॉन साइन बल्ब्स में प्रेजेंट है, वहां पे कौन सी गैस प्रेजेंट होती है, नियॉन गैस प्रेजेंट। और कहाँ प्रेजेंट होता है प्लाज्मा, जहां पे भी बहुत हाई टेम्परेचर का, और अदर हाई टेम्परेचर किधर हो रहा है, सन में हो रहा है, और इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन स्टार्स। So let's try and figure out कि प्लाज्मा किस तरह से नजर आता है। You can see this is how plasma, you can see over here, इस तरह से प्लाज्मा नजर आता है। बहुत सारे इसमें कलर्स होते हैं, और कलर्स किस पे डिपेंड करते हैं, कलर्स डिपेंड कर रहे हैं पे नेचर ऑफ द गैस, कौन सी गैस उसमें प्रेजेंट है उसके ऊपर कलर्स डिपेंड। तो देखो सॉलिड से हम एनर्जी जब ऐड करते रहते हैं, जैसे कि आप इस वाले फिगर में चेक कर रहे हो, तो जैसे जैसे आप देख सकते हो इसमें कि जैसे जैसे आप एनर्जी ऐड कर रहे हो सॉलिड से, वो कौन सी स्टेट में जा रहा है, गैसियस, सॉरी सॉलिड से वो लिक्विड स्टेट में जा रहा है। फिर आपने और एनर्जी प्रोवाइड कर दी, टेम्परेचर्स जितने भी है वो इंक्रीज होने लग गए, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की होने लग गई, वो किस में कन्वर्ट हो गया, दैट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू गैसेस। गैसेस को और जब आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा प्लाज्मा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वी आर कन्वर्टिंग solids by providing energy, we are converting it into liquids, liquids में एनर्जी डाल के we are converting it into gases, gases में एनर्जी डाल के we are converting it into plasma, right? So this is how plasma is formed, जिसको हम fourth state of matter बुलाते हैं। अब यहाँ पे energetic particles है, क्या होगा अगर हम लोग किसी भी एक पार्टिकल को बहुत ज्यादा कूल कर देंगे, राइट? तो बन जाएगा हमारे पास बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, विच इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, राइट? तो जनरली इसमें जो इसकी डिस्कवरी की इनिशिएशन थी दैट वाज डन बाय एस एन बोस। 1920 में एस एन बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, उन्होंने कुछ कैलकुलेशंस करी थी फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। ओके, और बेस्ड ऑन दीज कैलकुलेशंस अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक नई स्टेट ऑफ मैटर प्रेडिक्ट करी, जिसको हम क्या बुलाते हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, राइट? और उसके ऊपर रिसर्च की गई। 2001 में गाइस नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स मिला टू एरिक ए कॉर्नेल, वॉल्फगैंग केट्रल एंड कार्ल ई वीमैन को for giving us a fifth state of matter, which is Bose-Einstein condensate. Okay, ये जो Bose-Einstein condensate है, ये कैसे फॉर्म होता है, जैसे प्लाज्मा फॉर्म होता है by heating the gas। यहाँ पे हम गैस को सुपर कूल करते हैं, राइट? तो गैस जिसकी लो डेंसिटी रहेगी उसको हम लोग कूल करेंगे एट सुपर लो टेम्परेचर्स। और बट इसमें एक चीज है कि ये जो गैस है, देखो एक कंडीशन इसमें आपको नजर आ रही है, हैविंग लो डेंसिटी। डेंसिटी इस गैस की बहुत ही कम होनी चाहिए, सो डेंसिटी शुड बी अप्रोक्सीमेटली 1/100, दैट इज 0.01, और
वेरी करनी चाहिए 1/1000 डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर। जितनी नॉर्मल एयर की डेंसिटी होती है उससे इतनी कम डेंसिटी अगर गैस की होगी और उस गैस को हम सुपर कूल करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, राइट। सो ये जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है ये दिखता कैसे है, चलो इसको भी एक बारी चेकआउट मार लेते हैं। देखो इस तरह से हमें नजर आता है। So this is what Bose-Einstein condensate is, which is at a very, 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 very low temperature, right? अब हम temperatures की बात करते जा रहे हैं, तो when we are talking of temperatures over here, let's see एक नया topic हम यहाँ करते हैं। States of matter हमारा हो गया, temperature के scales क्या होते हैं। हर एक चीज को measure करने के लिए scales रहते हैं, isn't it? हर एक चीज को measure करने के लिए units रहते हैं। तो जैसे आप मास अगर मेजर कर रहे हो तो मास को आप किस में मेजर करते हो, केजी में मेजर कर सकते हो, ग्राम में मेजर कर सकते हो, इन सब में मेजर कर सकते हो, राइट। पर अगर हम लोग ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल लेंथ ले रहे हैं, तो लेंथ को आप किस में मेजर कर रहे हो, मीटर्स में मेजर कर रहे हो, सेंटीमीटर्स में मेजर कर रहे हो, ओके। तो उसी तरह टेम्परेचर को भी मेजर करना होता है। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए आपके सामने 3 स्केल्स मैंने दिखाए हैं, फ़ारेनहाइट, Celsius and Kelvin. There are 3 state scales for measuring temperature. Now let's discuss these one by one. अगर आप डिग्री फ़ारेनहाइट ले रहे हो, अगर हम लोग डिग्री फ़ारेनहाइट ले रहे हैं तो डिग्री फ़ारेनहाइट में freezing point of water that is taken as 32 degree Fahrenheit. So this is the freezing point of water. Okay. और अगर हम ले रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट इज टेकन एज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखो फ़ारेनहाइट स्केल अगर आप देखते हो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, हाईएस्ट टेम्परेचर एवर रिकॉर्डेड इन यूनाइटेड स्टेट्स 134 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर हम क्या ले रहे हैं, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बेसिकली जो थर्मोमीटर होता है फ़ारेनहाइट वाला वो 32 से 212 तक होता है, राइट। फिर यू हैव मून, कोल्डेस्ट एट इट्स कोल्डेस्ट इज एट -280 डिग्री फ़ारेनहाइट। और एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, दिस इज अनदर स्केल ऑफ टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो एक वैसा टेम्परेचर है जहां पे पार्टिकल्स की सारी मोशन सीज हो जाती है या सारी मोशन खत्म हो जाती है, देयर इज नो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज व्हाट एब्सोल्यूट जीरो इज, ओके। सो एब्सोल्यूट जीरो जो है in terms of Fahrenheit that is -460 degree Fahrenheit. Another scale of temperature which you can see is degree Celsius. Degree Celsius में 0 degree Celsius is taken as the freezing point of water and 100 degree Celsius is taken as the boiling point of water. So we are converting it. That means कि 212 degree Fahrenheit that will be equal to 100 degree Celsius because आप देख रहे हो यहाँ पे this is the boiling point of water. In a similar manner, 32 degree Fahrenheit will be equal to 0 degree Celsius, which is taken as standard 0 degree Celsius and 32 degree Fahrenheit, जो कि freezing point है water के, ठीक है। तो इसको convert किया है, highest temperature जो record किया गया है, क्योंकि degree Celsius सबसे common स्केल ऑफ टेम्परेचर है जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर कौन सा हुआ बच्चे, में आप टेम्परेचर अपना ह्यूमन बॉडी का रिकॉर्ड करते हो, वो फ़ारेनहाइट वाला है। तो फ़ारेनहाइट में हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 98 पॉइंट समथिंग ना, दैट इज 98 पॉइंट समथिंग, दैट इज द फ़ारेनहाइट टेम्परेचर व्हिच वी जनरली टेक। फिर उसके बाद आपके पास आ गया -18 डिग्री सेल्सियस, 0 degree Fahrenheit, which is equal to -18 degree Celsius. Sorry about my cold, guys, today. -280 degree Fahrenheit, which is -173 degree Celsius. So this is how you can convert one scale to other. जब हम केमिस्ट्री में कैलकुलेशंस करते हैं तो जो स्केल हम यूज करते हैं दैट इज गोइंग टू बी केल्विन। क्या स्केल है वो, केल्विन। डिग्री सेल्सियस सबसे कॉमन स्केल, सॉरी मेरा पेन टैब का पेन गिर गया, right? So that is your
सेल्सियस जो है दैट इज द मोस्ट कॉमन वन. ह्यूमन टेम्परेचर जब हम नोट करते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर उसमें फ़ारेनहाइट स्केल यूज करते हैं. जब हम केमिस्ट्री में मेजरमेंट्स करते हैं या हम फिजिक्स में मेजरमेंट्स करते हैं तो उसपे हम टेम्परेचर में क्या लेते हैं, केल्विन. ओके, केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर. दैट आल्सो वी विल डू की यूनिट्स कौन कौन से होते हैं इन आवर अपकमिंग लेक्चर्स. तो केल्विन में 273.15 Kelvin. This is the unit, or this is the boiling point of, sorry, freezing point of water. 273.15 Kelvin. So generally you will see कि books में 273 लिया जाता है. That is taken as a whole number is taken for simplifying the calculations. और जो boiling point है that is 373.15 Kelvin. देखो अभी Kelvin जब हम लोग यूज कर रहे हैं तो हम लोग डिग्री नहीं यूज करते. Kelvin क्या है? This is the SI unit of temperature. हर एक स्केल को हम दूसरे स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो जब हम लोग देख रहे हैं, लेट्स लुक एट द हाउ विल यू कन्वर्ट डिग्री फ़ारेनहाइट or degree Celsius into degree Fahrenheit. Then degree Fahrenheit that is equal to 9/5 degree Celsius plus 32. और अगर डिग्री सेल्सियस आपको फाइंड करना है फ्रॉम फ़ारेनहाइट तो यहाँ से ही डिराइव कर सकते हैं. 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32. ओके, सो ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हो. अगर आपको कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन, तो केल्विन दैट इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 270. ये सबसे कॉमन कन्वर्जन है जो कि आप बहुत जगह यूज करोगे. इसको चलो फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं. लेट्स ट्राई एंड फिगर आउट अ फ्यू क्वेश्चंस जिसमें कन्वर्जंस दे आर गिवन. तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन गाइस कमिंग अप ऑन योर स्क्रीन इज convert the following temperatures to Celsius scale. Convert the following temperatures to सेल्सियस स्केल. डिग्री सेल्सियस में आपको कन्वर्ट करना है. तो फर्स्ट वाला जो आपको दे रखा है दैट इज 470 केल्विन. क्या दिया हुआ है? 470 केल्विन. 470 केल्विन को आपने डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है. क्या है फॉर्मूला? कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा. let us change the color of our pen. Let's try and take black. Okay. तो 470 केल्विन वो आपको किस पे कन्वर्ट करना है? डिग्री सेल्सियस. क्या फॉर्मूला है? केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273. तो केल्विन आपको कितना दिया है? 470 माइनस 273. दैट इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस which will be equal to 10 minus 3 is 7. 15 take away 7 is 9 and 3 take away 2 is 1. It will be equal to 197 degree Celsius. Done? Okay, let's take another one. I'm going on to B. B is 300 Kelvin. कर सकते हैं ना अब आप easily. 300 केल्विन को हमने कन्वर्ट करना है. सो 300 केल्विन को अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं फॉर्मूला लगा लेते हैं. केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273. केल्विन आपको कितना दिया है? 300. 300 माइनस 273 दैट इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस. सो आई एम राइटिंग इट डाउन ओवर हियर. डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा? that will be equal to 10 take away 3 is 7, 9 take away 7 is 2. So it is going to be 27 degree Celsius. ठीक है? नहीं दिख रहा? Oh, sorry. So it is equal to what? It is equal to 27 degree Celsius. Done? All right, great. Then let's go on to इसी का opposite करके देखते हैं एक question.
जिसमें आपको टेम्परेचर्स को केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है. सो योर क्वेश्चन नंबर 2 इज convert the following temperatures, convert the following temperatures to Kelvin scale. ये तो बहुत ही आसान है बिकॉज इसमें सीधा आपने ऐड करना है. तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस को आपको कन्वर्ट करना है. 25 डिग्री सेल्सियस बच्चों लिया जाता है रूम टेम्परेचर. तो अगर जब भी आपको क्वेश्चन में रूम टेम्परेचर दिया है तो रूम टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ? डिग्री सेल्सियस. ठीक है जी. चलो देखें जरा क्या है हमारे पास. 25 डिग्री सेल्सियस को हमें कन्वर्ट करना है. so that will be equal to Kelvin is equal to degree Celsius plus 273 डिग्री सेल्सियस. आपको कितना दिया है? 273 25 plus 270 which is equal to 290 298 Kelvin. That is mostly taken as the room temperature. ये भी हम केमिस्ट्री में कुछ भी करेंगे, केमिस्ट्री में हम कोई भी मेजरमेंट्स करते हैं, ऑल द मेजरमेंट्स दे आर टेकन एट रूम. तो क्या है रूम टेम्परेचर? 298. अच्छा एक और करना है, चलो एक और करके देख लेते हैं. बहुत सी बड़ी डीप है इसमें. सेकेंड आपके पास आ गया 270 सेल्सियस. 273 डिग्री सॉरी 273 सेल्सियस को आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है. तो केल्विन आ गया 273 प्लस 273 which will be equal to what? 546? 546. So this is how easily you can convert. कन्वर्जन का आपको कोई एक क्वेश्चन आता है तो इसके आपने थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेने हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला. एक फॉर्मूला मैंने आपको फ़ारेनहाइट वाला भी दिया है तो उसको भी आप यूज कर सकते हो अगर वैसा आपको कोई. ठीक है. तो ये हो गए आपके कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर स्केल्स. नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है और जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं या हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो स्टेट्स ऑफ मैटर कैसे चेंज होते हैं. well we'll also try to do figure out some questions on latent heat of fusion. So you be prepared for your next class which is going to be soon. And if you have any doubts आप मुझे मैसेज कर सकते हो on the chat on my app Shelly's Chemistry. स्पेलिंग बच्चे ध्यान से रखना, लिंक तो दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. गूगल प्ले स्टोर पे जाके Shelly's Chemistry को आप कर सकते हो डाउनलोड. Okay? See you guys in the next class. Till that time, please take care and study very, very, very hard.